Welcome students on Young Minds Academy. Myself is Ashish Tiwari, your computer teacher, and today's lecture 3 on topic conditional control structure. In previous two lectures we have studied that what is conditional control structures or what are different types of conditional control structures, and in the conditional control structure we have studied the different if-else statements, simple if statement, then if-else, then if-else-if ladder, and then nested if-else statement. So today, in continuation of conditional control statement, I am going to discuss that topic which is switch case, which is also a very important topic. So let's start. Switch case statement or switch statement simply. Switch statement, what is switch statement? We have seen the if-else ladder. It is long series of if, else, if, else, if, else, if. So with the help of switch case in the if, else, if ladder, we have multiple, one choice to select among the multiple choice. We can select it. So the similar type of task we can perform with the help of switch case also. But there is some difference between switch case and if, else, if ladder statement. So what is switch case? Switch case statement is used when we have a number of options or choices, and we may need to perform a different task for each choice. And we have to select a particular choice, and each and every choice or every option can perform different type of task. So a switch statement allow a variable to be tested for equality against a list of values. Switch case statement में क्या होता है कि एक list of variable, एक variable होता है जिसकी इक्वालिटी को हम लोग डिफरेंट केस के केस नंबर से मैच कराते हैं या केस की वैल्यू से मैच कराते हैं, ठीक है. और जिस पर्टिकुलर केस से इस वेरिएबल की वैल्यू मैच करता है वो पर्टिकुलर केस जो है वो आपका उससे जो उसके जो स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट होते हैं, बाकी के जो केसेस हैं वो आपका स्किप हो जाता है. इन द केस अगर कोई भी पर्टिकुलर सिचुएशन इफ एनी केस डज नॉट मैच विद द वेरिएबल देन डिफॉल्ट केस होता है वो एग्जीक्यूट होता है. तो इसमें क्या होता है, ईच वैल्यू इज कॉल्ड अ केस. हर एक वैल्यू जो होता है वो केस बोला जाता है सिंपली. एंड द वेरिएबल बीइंग स्विच्ड ऑन इज चेक्ड फॉर ईच केस. तो वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल की वैल्यू को हर केस की वैल्यू से यानी हर वैल्यू से कंपेयर किया जाता है और इक्वलिटी के लिए कंपेयर होता है. तो अभी जब हम स्विच केस और इफ एल्स लैडर का डिफरेंस पढ़ेंगे तो एक सबसे बड़ा डिफरेंस है कि इफ एल्स इफ में हम लोग क्या है रेंज ऑफ वैल्यू को चेक कर सकते हैं पर्टिकुलर वैल्यू की, बट यहाँ पे इक्वालिटी के लिए चेक होता है ओनली फॉर इक्वालिटी, टेस्टेड फॉर इक्वालिटी अगेंस्ट ईच वेरिएबल. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है. So this one is very important line. This one tested for equality. किसके लिए टेस्ट होता है, इट फॉर इक्वालिटी अगेंस्ट द वैल्यू. तो यहाँ पे ध्यान देना, दिस विल क्रिएट द डिफरेंस बिटवीन स्विच केस एंड इफ एल्स इफ लैडर प्रोग्राम. नाउ in Java we have used the if else if ladder to execute a block code among multiple blocks. However the syntax of if else if ladder are too long. तो जो syntax होता था if else if ladder का वो ज़्यादा लेंदी हो जाता था, and hence we can use the switch statement as a substitute of long if else if ladder. So switch can statement can be used as a substitute for long if else if ladder statement. तो एक चीज़ यहाँ पे as a substitute use कर सकते हैं. Now the use of switch statement makes our code more readable. एक easy format, it is easy, इसका syntax जो होता है that is easier than if else if ladder, क्योंकि conditions वहाँ checking के लिए conditional expression use करते हैं, रिलेशनल एक्सप्रेशन या लॉजिकल ऑपरेटर की हेल्प से. बट यहाँ पे कंडीशन नहीं, इक्वालिटी चेक होती है सिंपली. एंड नाउ द सिंटैक्स फॉर स्विच केस स्टेटमेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैंने केवल जितना सिंटैक्स लिखा है दैट इज स्पेशली फॉर स्विच केस का जो सिंटैक्स होता है वो है, बाकी का कंप्लीट प्रोग्राम यहाँ पे नहीं लिखा गया. पहले यहाँ पे स्विच एक आपका क्या होगा, एक कीवर्ड यूज होगा स्विच,
देन कीवर्ड में एक वेरिएबल हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, वेरिएबल और एन इंटीजर एक्सप्रेशन, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, एक वेरिएबल होगा, ध्यान देना कि वेरिएबल आपका क्या होना चाहिए, पर्टिकुलर टाइप का वेरिएबल होगा, उसके बारे में पढ़ेंगे और इसका भी लिमिटेशन है। देन हमारे पास ब्रेसेस ओपन होगा एंड केस कीवर्ड के साथ यहाँ पे कांस्टेंट या वैल्यू लिखा जाएगा, इसी की बात हो रही थी वैल्यू को, ठीक। फिर उसके बाद ये केस पर्टिकुलर केस है, केस की जो वैल्यू होगी, इस केस की वैल्यू को इस वेरिएबल की वैल्यू से कंपेयर कराया जाता है, कंपेयर फॉर इक्वालिटी, कंपेयर फॉर इक्वालिटी, इक्वालिटी के लिए कंपेयर करते हैं। अगर इस वेरिएबल की वैल्यू इस कांस्टेंट केस जो यहां पे लिखा है इसकी कांस्टेंट या केस 1 की वैल्यू से मैच करता है, देन ब्लॉक कोड, जावा कोड जो भी यहां लिखा होगा केस के अंदर वो एग्जीक्यूट होगा। और उसके बाद फिर ब्रेक स्टेटमेंट एक यूज होता है, ब्रेक के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। ब्रेक के बारे में मैंने बताया भी था आपको कि जंपिंग स्टेटमेंट होता है, ठीक। ब्रेक स्टेटमेंट यहाँ पे मिलेगा और ब्रेक का काम क्या है, ये आपका जो कंट्रोल होता है जावा कंपाइलर, उसको फिर इस स्विच आपका जो स्टेटमेंट है या स्विच स्टेटमेंट से बाहर कर देता है। ब्रेक स्टेटमेंट ऑप्शनल है। देन अगर ये पर्टिकुलर जो वेरिएबल है यानी केस 1 इस वेरिएबल की वैल्यू से मैच नहीं करता है, ठीक है, केस 1 की वैल्यू, तो फिर इट विल टेस्ट फॉर केस 2, इट विल टेस्ट फॉर वैल्यू ऑफ केस 2 एंड देन इफ केस 2 value of case 2 match with the variable, then code written inside the case 2 will be executed and उसके बाद फिर आपका ब्रेक स्टेटमेंट के साथ आपका क्या हो जाएगा, कंट्रोल स्विच स्टेटमेंट के बाहर आ जाएगा। इस तरीके से आपके कितने भी केसेस हो सकते हैं, वी कैन हैव नंबर ऑफ केसेस। और अगर सपोज पर्टिकुलर कोई भी केस का जो वैल्यू है या केस नंबर है वो इस वेरिएबल की वैल्यू से मैच नहीं करता है यानी इसके इक्वल नहीं है, तो फिर फाइनली डिफॉल्ट जो आपका होता है केस, ये डिफॉल्ट केस है, डिफॉल्ट कीवर्ड यूज किया जाता है। डिफॉल्ट केस जो होता है उसके अंदर जो कोड लिखा होता है वो फाइनली एग्जीक्यूट हो जाता है, अगर इन केस जब कोई भी पर्टिकुलर आपका मैच नहीं कर रहा है तो, ठीक। कोई भी पर्टिकुलर केस मैच नहीं कर रहा है वेरिएबल की वैल्यू से, तो फिर क्या होता है, डिफॉल्ट केस आपका एग्जीक्यूट होता है। ठीक उसी तरीके से जैसे हम लोग इफ में होते थे, इफ के साथ कंडीशन होता था उसको चेक करते थे, इफ सही अगर का कंडीशन मैच कर रहा है या कंडीशन ट्रू है तो इफ का जो ब्लॉक कोड होता था वो एग्जीक्यूट होता था। देन एल्स इफ में जाते थे, फिर एल्स इफ में हर बार जाके हम कंडीशन क्या करते थे, कंडीशन चेक करते थे और फाइनली जब कुछ नहीं कंडीशन आपका ट्रू होता था तो फाइनली हम लोग एल्स ब्लॉक को एल्स ब्लॉक जो होता था वो एग्जीक्यूट होता था। सिमिलरली यहाँ पे भी एल्स की जगह की तरह से ही डिफॉल्ट केस होता है। डिफॉल्ट केस तब एग्जीक्यूट होगा जब कोई भी पर्टिकुलर केस हमारा वेरिएबल से मैच नहीं करता। नाउ हाउ इट वर्क्स, ये कैसे वर्क करता, हाउ स्विच स्टेटमेंट वर्क्स। द स्विच एक्सप्रेशन इज इवेलुएटेड वंस, स्विच एक्सप्रेशन में जो वैल्यू दिया होता है वो पहले इवेलुएट होता है, उसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू मिलती है, उसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी, वो एक सिंगल वैल्यू होनी चाहिए, रेंज ऑफ वैल्यू नहीं। ऐसा नहीं कि लिखा हुआ x इज ग्रेटर देन 5, तो x इज ग्रेटर देन 5 का मतलब होता है इट कैन बी 6 अप टू इनफाइनाइट वैल्यूज, कोई भी वैल्यू हो सकती है, ऑल द वैल्यूज विच आर ग्रेटर देन 5, तो सभी इंटीजर। अब ग्रेटर देन 5 के हमारे बहुत सारे इंटीजर्स हैं, इनफाइनाइट इंटीजर्स आर देयर। इफ इट इज रिटन x इज लेस देन 5, तो यहाँ पे भी बहुत इंटीजर्स कितने हैं, 1 2 3 4 इतने इंटीजर्स वैल्यू हो गए। तो ऐसा नहीं होता, ये कोई एग्जैक्ट सिंगल वैल्यू नहीं देता। जब आपका ये रिलेशनल एक्सप्रेशन लिखते हैं तो इससे कोई ये सिंगल वैल्यू के लिए टेस्ट नहीं होता, ये रेंज ऑफ वैल्यू के लिए टेस्ट होता है। बट यहाँ पे क्या होता है, स्विच एक्सप्रेशन इज वैल्यूएट वंस, ये वैल्यूएट होता है और एक सिंगल वैल्यू मिलती है, ठीक है। देन द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन इज कंपेयर्ड विद द वैल्यूज ऑफ द ईच केस। अब जो एक्सप्रेशन की वैल्यू होगी वो हर केस के साथ कंपेयर होता है, ठीक है। एक्सप्रेशन की वैल्यू जो यहाँ पे होगी, ये एक वेरिएबल या जो भी एक्सप्रेशन इवेलुएट होगा उसकी जो वैल्यू है हर केस वैल्यू से ये क्या करेगा, मैच होगा। और जिस भी पर्टिकुलर केस से ये मैच करेगा उस केस के अंदर जो स्टेटमेंट है दैट विल बी एग्जीक्यूटेड। इफ देयर इज मैच द एसोसिएटेड ब्लॉक कोड इज एग्जीक्यूटेड। अगर वो हर केस के साथ मैच होगा और जिस केस के साथ वो मैच कर जाता है then the associated block of that particular case will be executed and the break and default keywords are optional. break और default optional है।
अगर हम डिफ़ॉल्ट नहीं लिखते हैं तो फिर इन केस अगर कोई केस मैच नहीं करता तो कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। जैसे हमने सिंपली इफ़ स्टेटमेंट पढ़ा था कि इफ़ में क्या होता था, अगर इफ़ कंडीशन ट्रू हुआ तो एग्जीक्यूट होता था स्टेटमेंट, और कंडीशन फॉल्स हो जाने के बाद क्या करना है ऐसा कुछ भी उस पर ऑप्शन नहीं है। ऐसे ही अगर हम डिफ़ॉल्ट नहीं यूज़ करेंगे तो स्विच केस स्टेटमेंट में भी वही वर्क होगा कि केसेस मैच किया तो एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज फिर कोई डिफ़ॉल्ट ऑप्शन नहीं है। और दोनों ऑप्शनल है, ब्रेक भी ऑप्शनल है। ब्रेक और डिफ़ॉल्ट का क्या यूज़ है, इसको ना यूज़ करने से क्या फ़र्क पड़ेगा प्रोग्रामिंग के फ्लो पे, उसको हम लोग अभी आगे के जो टॉपिक आगे भी इसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो लेट्स सी नेक्स्ट सम इम्पॉर्टेंट रूल्स फॉर स्विच स्टेटमेंट्स। कुछ रूल्स हैं स्विच स्टेटमेंट्स का। फर्स्ट वन इज डुप्लीकेट केस वैल्यू आर नॉट अलाउड। ऐसा नहीं कि हम लोग यहाँ पे लिख दिए केस 1 फिर से हमने लिखा केस 1, ऐसा नहीं। डुप्लीकेट वैल्यू अलाउड नहीं है, डुप्लीकेट वैल्यू नहीं लिखना है। एंड द वैल्यू फॉर केस मस्ट बी ऑफ द सेम डेटा टाइप एज द वेरिएबल इन द स्विच। स्विच के साथ जो हम लोग वेरिएबल यूज करेंगे, स्विच के साथ जब लोग वेरिएबल जो यूज करेंगे, इसका जो डेटा टाइप होगा यानी इसका वैल्यू का जो टाइप है दैट शुड बी कंपैटिबल टू द केस वैल्यू। केस की वैल्यू 1 2 3 है। केस की वैल्यू आपका ये भी हो सकता है, सिंपली ए, इस तरीके से लिया जा सकता है। अगर ये ABC फॉर्म में है यानी अल्फ़ाबेट है तो यहाँ पे जो वेरिएबल है वो भी अल्फ़ाबेट होना चाहिए, यानी इसकी जो वैल्यू होनी चाहिए वो केस वैल्यू से क्या होना चाहिए, मैच होना चाहिए, यानी उसी टाइप का होना चाहिए। आप कह सकते हैं इट शुड बी कंपैटिबल टू द केस वैल्यू। एंड द वैल्यू फॉर केस मस्ट बी कांस्टेंट और लिटरल, वेरिएबल्स आर नॉट अलाउड। अब यहाँ पे जो केस की वैल्यू है ये कोई कांस्टेंट या लिटरल होगा। लाइक जैसे केस ए लिखा गया, केस 1 ये इस तरीके से लिखा सकता है, केस में हम लोग फिर प्लस सिंबल ले सकते हैं इस तरीके से। तो ये आपका कोई पर्टिकुलर लिटरल या कांस्टेंट होना चाहिए। एंड द ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज इनसाइड द स्विच टू डिटर्मिनेट अ स्टेटमेंट सीक्वेंस। ब्रेक स्टेटमेंट को हमें यूज करना चाहिए जिस पर्टिकुलर, जैसे कोई पर्टिकुलर केस मैच करता है तो उसके अंदर जो भी ब्लॉक कोड हैं या जावा कोड्स हैं that will be executed, and after execution of those statement there should be a break statement to get the control out of the switch statement। अगर ब्रेक नहीं होगा तो उसके बाद ये फॉल थ्रू में चेंज हो जाता है। फॉल थ्रू मतलब उसके बाद के जितने केसेस हैं वो सभी केसेस एग्जीक्यूट होंगे, या उसके जस्ट जितने भी केसेस में ब्रेक नहीं लगा सभी एग्जीक्यूट हो जाता है। नेक्स्ट इज द ब्रेक स्टेटमेंट यूज इनसाइड द स्विच टू टर्मिनेट अ स्टेटमेंट सीक्वेंस। द ब्रेक स्टेटमेंट इज ऑप्शनल इफ omitted एग्जीक्यूशन विल कंटिन्यू ऑन द इनटू द नेक्स्ट केस। फॉल थ्रू केस है ये, यानी अगर ब्रेक स्टेटमेंट ऑप्शनल है लेकिन अगर इसको हम omit करते हैं, नहीं यूज करते, देन एग्जीक्यूशन विल कंटिन्यू इनटू द नेक्स्ट केस। एक केस मैच किया, जो पहली बात तो जो केस मैच करेगा वही सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा। सपोज केस नंबर 1 से लेकर 5 तक है, ठीक है। केस नंबर 1 से लेकर 1, केस 2, केस 3 एंड केस 4 एंड केस 5, इतने केसेस है। सपोज केस नंबर 3 मैच कर जा रहा है, केस नंबर 3 मैच करेगा तो सबसे पहले केस 3 एग्जीक्यूट होगा, फिर अगर ब्रेक स्टेटमेंट नहीं लगा तो केस 4 भी एग्जीक्यूट हो जाएगा और केस 5 भी एग्जीक्यूट होगा जब केस 4 में ब्रेक नहीं है। तो सपोज अगर केस 3 में ब्रेक नहीं लगा है तो केस 3 के बाद केस 4 भी एग्जीक्यूट होगा, और अगर केस 4 में ब्रेक हो गया तब तो यहाँ से बाहर जाएगा कंट्रोल। अगर केस 4 में भी ब्रेक नहीं लगा है तो फिर ये कंटिन्यूएशन होगा और केस 5 भी एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक। तो अगर ब्रेक स्टेटमेंट ऑप्शनल है बट अगर ब्रेक नहीं लगाएंगे तो हमारा वो जो स्विच केस स्टेटमेंट वो फॉल थ्रू केस बन जाएगा, और फॉल थ्रू केस का प्रोग्राम हम पढ़ेंगे, इससे रिलेटेड एक प्रोग्राम। नेक्स्ट, द डिफॉल्ट स्टेटमेंट इज ऑप्शनल एंड कैन अपीयर एनीवेयर इनसाइड द स्विच ब्लॉक। डिफॉल्ट केस जो होता है वो क्या होता है, ऑप्शनल होता है और किसी भी ऑर्डर में हो सकता है। सबसे पहला ही केस डिफॉल्ट हो सकता है। In case if it is not at the end, then a break statement must be kept after the default statement to omit the execution of next case statement। अगर डिफॉल्ट को सबसे लास्ट में से रखा जाता है, स्टैंडर्ड फॉर्म, ये स्टैंडर्ड सिंटैक्स ही होता है कि क्योंकि सभी केसेस को टैली करने के बाद अगर नहीं मैच करता है देन डिफॉल्ट विल बी एग्जीक्यूटेड। बट अगर डिफॉल्ट केस सबसे पहला केस पे पहले ऑर्डर में रखा गया
तो उस केस में क्या होता है कि डिफॉल्ट के साथ ब्रेक लगाना जरूरी है, अदरवाइज कोई भी केस मैच नहीं किया तो वो डिफॉल्ट एग्जीक्यूट होगा और डिफॉल्ट एग्जीक्यूट होने के बाद बाकी फिर केसेस फिर से एग्जीक्यूट हो जाएंगे। तो डिफॉल्ट को लास्ट में रखते हैं, जब लास्ट में रखते हैं तो डिफॉल्ट के बाद फिर हम लोग को ब्रेक लगाने की जरूरत नहीं है, ब्रेक लगाएं या ना लगाएं, क्योंकि डिफॉल्ट के बाद फिर कोई केस नहीं होता है और उसके बाद ऑटोमेटिकली हमारा जो कंपाइलर होता है वो क्या होता है, स्विच स्टेटमेंट से बाहर आ जाता है। नाउ फ्लो चार्ट फॉर स्विच केस। Now you can see the flow chart of switch statement like जैसे हमने फ्लो चार्ट बताया था आपको इफ एल्स का, इफ का। फ्लो चार्ट हमें बताता है कि हमारा कंट्रोल जो है या फ्लो ऑफ प्रोग्राम कैसे होगा, एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम किस तरीके से होगा, यानी कंट्रोल किस तरीके से फ्लो होगा। सबसे पहले हमारा क्या होगा, यहाँ पे स्विच यूज होगा, स्विच के साथ ये एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन इवेलुएट होगा, जो भी एक्सप्रेशन होगा, और इवेलुएट होने के बाद एक सिंगल वैल्यू मिलेगी, कोई रेंज ऑफ वैल्यू नहीं होगा, सिंगल वैल्यू मिलेगा, और वो सिंगल वैल्यू जो भी होगा वो केसेस से मैच होंगे। केस की जो वैल्यू है, केस की वैल्यू क्या है, जैसे केस 1, केस 2, केस 3, और उसके बाद फिर अगर इन सब से मैच होगा, इनमें से जो केस 1 मैच हो जा रहा है तो जो भी कोड लिखा है केस 1 में, कोड इन केस 1 ब्लॉक, दैट विल बी एग्जीक्यूटेड, और आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ केस 1 द कंट्रोल विल एग्जिट फ्रॉम द स्विच स्टेटमेंट। कंट्रोल जो है वो स्विच स्टेटमेंट से बाहर हो जाएगा। इन केस केस 1 नहीं मैच करता एक्सप्रेशन से, देन द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन विल बी टेस्टेड फॉर इक्वालिटी विथ केस 2। केस 2 की इक्वालिटी के लिए यहाँ पे कंपेयर किया जाएगा। इफ केस 2 मैच, if the value of the case 2 match with the value of expression, then block of code written inside the case 2 will be executed and control get out of the switch statement. Now similarly, if case 2 doesn't value of the case 2 doesn't match with the value of expression, then continuation in continuation the case 3 will be compared, the next cases if are there will be matched, and in the case if no case is matched, अगर in the situation अगर कोई केस मैच नहीं करता है तो उस केस में क्या होगा, जो डिफॉल्ट स्टेटमेंट है यानी डिफॉल्ट जो केस है उसका जो ब्लॉक कोड है वो आपका एग्जीक्यूट होना ही होना है। तो उस केस में अगर कोई डिफॉल्ट तभी एग्जीक्यूट नहीं होगा जब कोई पर्टिकुलर केस मैच कर जाता है। अगर कोई पर्टिकुलर केस नहीं मैच कर रहा है देन उस केस में फिर डिफॉल्ट हमारा एग्जीक्यूट होगा। डिफॉल्ट अगर नहीं आपने लिखा है तो फिर कुछ वर्क नहीं होगा, और डिफॉल्ट उसी तरीके से होता है जैसे इफ के साथ एल्स लगाने का यूज है। तो ये आपका फ्लो है स्विच स्टेटमेंट का। नाउ प्रोग्राम, एक कंप्लीट प्रोग्राम देखते हैं एग्जांपल में स्विच स्टेटमेंट का। पब्लिक क्लास टेस्ट नाम से क्लास लिया है एंड पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन फंक्शन। मेन फंक्शन के अंदर हमने एक कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल लिया है ग्रेड। कैरेक्टर वेरिएबल है क्या, ग्रेड, और उसकी वैल्यू क्या है सी। यहाँ पे मैंने जितने भी प्रोग्राम एग्जांपल में लिए उस पर आपको मैंने इनपुट करके नहीं दिखाया कि स्कैनर क्लास का यूज़ नहीं मिलेगा आपको, एक आध प्रोग्राम में मिलेगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आपने स्कैनर क्लास पढ़ा हुआ है तो स्कैनर क्लास से इनपुट करना आपको आता है, ठीक है। तो मैंने सिंपली क्या किया, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया कैरेक्टर टाइप का और उसको एक वैल्यू असाइन कर दिया सी। नाउ अब इस ग्रेड वेरिएबल को हमने क्या कर दिया, पास कर दिया स्विच एक्सप्रेशन के फॉर्म में, यानी स्विच के अंदर। अब यहाँ पे कोई एक्सप्रेशन भी हो सकता है या कोई वैल्यू हो सकती थी, तो वैल्यू क्या होगी, जो वेरिएबल हमने लिया उसी की वैल्यू। अब ग्रेड का मतलब क्या, यहाँ पे स्विच में क्या है, सी है। नाउ इस ग्रेड की वैल्यू जो है वो हर एक केस के वैल्यू से मैच करेगा, और केस की वैल्यू क्या है, पहले केस की वैल्यू है ए, दूसरे केस की वैल्यू है बी, तो ग्रेड की वैल्यू मैच होगा केस ए केस बी, और इस तरीके से फिर आपका केस सी केस डी, और फिर एक डिफॉल्ट केस लिखा गया, ठीक। नाउ अब कैसे वर्क करेगा, ग्रेड की वैल्यू क्या है सी, ठीक, ग्रेड की वैल्यू सी है, और यहाँ पे केस पहले वाले केस की वैल्यू क्या है ए, तो सी डज नॉट इक्वल टू ए, तो सी डज नॉट इक्वल टू ए, सी ए के इक्वल नहीं है, तो पहला वाला केस आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा। देन वैल्यू ऑफ ग्रेड विल बी टेस्टेड फॉर इक्वलिटी
विथ केस 2। केस 2 क्या है आपका, इस केस की वैल्यू क्या है, सेकेंड केस की b है। तो सिंस b इज नॉट इक्वल टू c, b c के इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये वाला केस भी जो भी केस के अंदर स्टेटमेंट लिखा हुआ एग्जीक्यूट नहीं होगा। नेक्स्ट इज केस c। अब यहाँ पे क्या है, ग्रेड की वैल्यू क्या है, c है, और c हमारा केस भी है, तो c इज इक्वल टू c, यहाँ पे मैच कर जाएगा। और जैसे ही यहाँ मैच करेगा ये वाला केस, वैसे ही स्टेटमेंट इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, तब जाके हमारा कंट्रोल क्या आएगा, केस के अंदर आएगा। और केस के अंदर क्या लिखा है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन यू पास्ड। ठीक है, तो ग्रेड सी पे क्या है, पास है। एंड उसके बाद फिर ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक होने के बाद हमारा कंट्रोल कहाँ जाएगा, यहाँ पे डिफॉल्ट के बाद यहाँ तक जो ब्रेसेस लगा है, यहाँ तक हमारा स्विच स्टेटमेंट है। दिस ब्रेसेस शो द बाउंड्री ऑफ स्विच स्टेटमेंट। जैसे ही केस सी मैच करता है उसका स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, और ब्रेक लगा है, ब्रेक का मतलब हो गया कि यहाँ ये एग्जीक्यूट होने के बाद जैसे ही ब्रेक मिलता है कंट्रोल को यानी कंपाइलर को, वैसे ही कंपाइलर उस पर्टिकुलर ब्लॉक स्टेटमेंट से बाहर हो जाता है। और यहाँ बाहर आने के बाद प्रिंट करेगा योर ग्रेड इज, जो भी आपने ग्रेड इनपुट किया था, ग्रेड क्या था, मैंने लिया था सी, तो योर ग्रेड इज सी। तो यहाँ पे सिंपल सा प्रोग्राम है, ग्रेड के अकॉर्डिंग ये बताना कि अगर ए ग्रेड है तो क्या प्रिंट करेगा, बी ग्रेड पे क्या प्रिंट होना है, सी पे, डी पे, एक्सेट्रा। तो ये सिंपली यहाँ पे प्रोग्राम था कि ग्रेड है, अगर किसी का ग्रेड ए आ रहा है तो उसका केस ए से मैच करेगा, और केस ए से अगर उसका मैच कर रहा है तो उस ग्रेड ए पे एक्सीलेंट प्रिंट करना है। ग्रेड बी अगर है आपका किसी का, तो उस फिर केस बी मैच करेगा, यानी ग्रेड वाले वैल्यू से मैच होगा। और ग्रेड बी अगर किसी का, तो उसके लिए प्रिंट करेगा वेल डन। ठीक, नेक्स्ट फिर आपका ग्रेड सी। ग्रेड सी अगर किसी का है तो केस सी मैच करेगा, क्योंकि ग्रेड की वैल्यू कैरेक्टर में है और केस का जो वैल्यू है वो भी कैरेक्टर में, तो ये सी से मैच करेगा और प्रिंट करेगा यू पास्ट। इस वाले प्रोग्राम के अकॉर्डिंग हमारा केस सी मैच कर रहा है, तो इसका जो आउटपुट होगा यू पास्ट प्रिंट करेगा। पहले क्या प्रिंट करेगा, यू पास्ट, देन यहाँ पे आउटपुट है इसका यू पास्ट, एंड देन फिर आपका इसके बाहर जो स्टेटमेंट लिखा है ग्रेड सी, तो यहाँ पे क्या प्रिंट करेगा, योर ग्रेड एज अ मैसेज प्रिंट करेगा, योर ग्रेड इज सी, योर ग्रेड इज सी। ये आपका इस तरीके से प्रिंट हो जाएगा। तो यू पास योर ग्रेड इज सी। बाकी के डिफॉल्ट स्टेटमेंट लिखा है, तो यहाँ पे सी वाला हमारा केस मैच करेगा, और सी मैच करने के बाद हमारा ये जो स्टेटमेंट है विद इन सी केस दैट विल बी एग्जीक्यूटेड। नाउ डिफॉल्ट केस एंड इट्स यूज। डिफॉल्ट केस और इसका यूज क्या है, डिफॉल्ट केस और इसका, अब हम लोग डिफॉल्ट और ब्रेक को हमने यूज किया है, ये दोनों कीवर्ड, तो हम इनके बारे में पढ़ लेते हैं कि ये है क्या और इनका क्या यूज है। द डिफॉल्ट केस एंड इट्स यूज। डिफॉल्ट के बारे में मैंने बताया कि डिफॉल्ट हमारा कब एग्जीक्यूट है, जो डिफॉल्ट केस है वो तब एग्जीक्यूट होता है जब कोई भी केस हमारा वेरिएबल की जो स्विच एक्सप्रेशन की वैल्यू है, यानी स्विच के अंदर जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू से मैच नहीं करता। सो डिफॉल्ट कीवर्ड यहाँ पे द डिफॉल्ट ब्लॉक ऑफ कोड इन स्विच स्टेटमेंट। डिफॉल्ट कीवर्ड क्या है, द डिफॉल्ट ब्लॉक ऑफ स्विच स्टेटमेंट, एंड द डिफॉल्ट कीवर्ड स्पेसिफाइज सम कोड टू रन इफ देयर इज नो केस मैच इन स्विच। ये क्या करता है, इसमें कुछ ऐसे कोड लिखे जाते हैं जो तब एग्जीक्यूट होते हैं जब हमारा जो कोई भी पर्टिकुलर केस का जो है वो हमारे स्विच एक्सप्रेशंस की वैल्यू से मैच नहीं करता है। इट मीन्स अगर कोई भी स्विच एक्सप्रेशन की वैल्यू से कोई भी केस मैच नहीं करना है, तो उस केस पे हमें फिर क्या एग्जीक्यूट करवाना है या क्या स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना है, वो स्टेटमेंट को हम डिफॉल्ट के अंदर रखते हैं। डिफॉल्ट के अंदर हम ऐसा मैसेज जनरली लिखते हैं कि ये रॉन्ग इनपुट है या रॉन्ग ग्रेड है या कुछ भी ऐसी वैल्यू रखते हैं जो हम कह सकते हैं कि एक्सेप्शन हो सकता है कि ऐसे वैल्यू मिल सकती है, या अनएक्सपेक्टेड वैल्यू अगर यूज़र इनपुट करता है हमारे जो प्रोग्राम के अकॉर्डिंग, तो उस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग अगर कोई वैल्यू अनएक्सपेक्टेड इनपुट हो जाता है यूज़र से, तो उस केस को बताने के लिए या अनएक्सपेक्टेड जो वैल्यू इनपुट हुआ है उसको ये समझाने के लिए क्या करते हैं, सिंपली हम लोग डिफ़ॉल्ट केस में उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को लिख देते हैं जिससे हमें रन करे प्रोग्राम। तो अगर सही वैल्यू इनपुट किया है तो वो जो वैल्यू है वो जिस केस से मैच करे वो केस का जो कोड है वो एग्जीक्यूट हो। और अगर कहीं यूज़र ने कोई स्पेसिफाइड जो वैल्यू है यानी जो वैल्यू होनी चाहिए उसके अलावा कोई वैल्यू इनपुट कर दिया, सपोज कि जो केस है वो 1 2 3 इस तरीके से है, न्यूमेरिक वैल्यू है, और जो इनपुट यूज़र ने किया वो अल्फ़ाबेट इनपुट कर दिया,
ठीक है। अब अल्फ़ाबेट जो है वो किसी पर्टिकुलर केस से मैच नहीं करेगा, क्योंकि केस की वैल्यू इंटीजर है और वैल्यू इनपुट है वो अल्फ़ाबेट है। तो उस केस में क्या होगा, इनपुट आपका अकॉर्डिंग टू द केस वैल्यू नहीं है, देन कोई केस आपका मैच नहीं करेगा और फिर डिफ़ॉल्ट हम लिख सकते हैं कि रॉन्ग इनपुट। क्लियर? नोट, इफ द डिफ़ॉल्ट कीवर्ड यूज एज द लास्ट स्टेटमेंट इन अ स्विच ब्लॉक, इट डज नॉट नीड अ ब्रेक। अगर हम लोग डिफ़ॉल्ट को सबसे लास्ट में लिखते हैं, ऐसे तो किसी भी जगह पे लिख सकते हैं, इसका ऑर्डर नहीं है कि सबसे लास्ट में ही लिखा जाए, बट लास्ट में लिखना एक कन्वेंशन है, लास्ट में लिखा जाता है। बट अगर उसको हम लोग सबसे पहले भी लिख सकते हैं, बीच में कहीं लिख सकते हैं, उस केस में हमारे लिए मैंडेटरी हो जाता है कि डिफ़ॉल्ट के साथ हम ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ करें। अदरवाइज अगर ब्रेक नहीं करते तो उसके अगला वाला जो केस होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। बट अगर हम लास्ट में डिफ़ॉल्ट को, जो कि जनरली हम लोग लिखते हैं लास्ट में ही, अगर लास्ट में लिखा है तो ब्रेक स्टेटमेंट आपका लिखना ऑप्शनल है। जरूरी नहीं है कि हम ब्रेक लिखें, क्योंकि उसके बाद कोई केस नहीं है, कोई स्टेटमेंट नहीं होता है स्विच स्टेटमेंट के अंदर, या कोई भी जावा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करना होता। तो अपने आप और आपका क्या होता है, जो कंट्रोल होता है वो स्विच स्टेटमेंट से बाहर हो जाता है। तो उसके लिए उसको बाहर लाने के लिए कंट्रोल को ब्रेक स्टेटमेंट की नीड नहीं होती है। नाउ एग्जाम्पल रिलेटेड टू डिफॉल्ट केस। यहाँ पे पूरा प्रोग्राम नहीं लिखा गया है। फिर सपोज एक वेरिएबल है इंटीजर टाइप का डे, ठीक, एक वेरिएबल है इंटीजर टाइप का डे और वैल्यू है डे की क्या, 4। नाउ जो वेरिएबल हम लेंगे, ध्यान रखिएगा, जो भी हम वेरिएबल लेते हैं वही वेरिएबल को स्विच के अंदर एज अ एक्सप्रेशन या एज अ वैल्यू पास कर दिया जाता है। ठीक है, स्विच के पैरेंथेसिस के अंदर। तो डे की वैल्यू क्या है, 4 है, यानी स्विच के अंदर जो वैल्यू है क्या है, वो 4 है। नाउ दिस वैल्यू यानी डे की जो वैल्यू है दैट विल बी कंपेयर्ड विथ ऑल द केसेस के साथ कंपेयर होगा। डे की वैल्यू क्या है, 4। अब यहाँ पे 4 केस की वैल्यू क्या है, 6। तो 4 नॉट इक्वल टू 6, इसका मतलब केस जो पहला केस हमने लिखा है वो मैच नहीं होगा और ये स्टेटमेंट आपके दोनों एग्जीक्यूट नहीं होंगे। नेक्स्ट फिर आपका केस, दूसरा वाला केस की वैल्यू क्या है, 7। इसके अब डे की वैल्यू क्या है, 4। 4 किससे कंपेयर होगा, 7 से, एंड 4 नॉट इक्वल, अगेन 4 नॉट इक्वल टू 7। फिर से आपका जो सेकेंड वाला केस है वो मैच नहीं कर रहा है और फिर इसका मतलब है कि जो स्टेटमेंट आपका केस 7 के अंदर लिखा गया है वो आपका क्या होगा, एग्जीक्यूट नहीं होगा। नाउ अब दोनों केस मैच नहीं की ना, तो हमारा केस, पहला वाला केस जिसकी वैल्यू 6 थी और दूसरा वाला केस जिसकी वैल्यू 7 थी, दोनों ही केस हमारा जो वेरिएबल था यानी स्विच के एक्सप्रेशन की वैल्यू जो थी या स्विच की वैल्यू से मैच नहीं किया। उस केस में क्या होगा, डिफॉल्ट के पास आएगा कंट्रोल, और डिफॉल्ट के पास आने के बाद क्या लिखेगा, अदर देन वीकेंड। अगर केस 6 मैच करता, डे 6 होता तो डे 6 क्या होता है, सैटरडे, और डे 7 संडे होता है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम प्रिंट कराते हैं। अदरवाइज अगर कोई भी मैच नहीं कर रहा है, इसका मतलब अदर देन वीकेंड, वीकेंड के अलावा कोई दूसरा दिन है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रिंट हो गया। यहाँ पे आप क्या प्रिंट कराते हैं वो प्रोग्राम के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या प्रिंट करना है। जरूरी नहीं कि हमने अभी तक जितने भी प्रोग्राम आपको बताए स्विच केस के, उसमें जो है केस के अंदर जो स्टेटमेंट थे वो जनरली आपको प्रिंट स्टेटमेंट ही यूज हुए थे सिंपल मैसेज प्रिंट करने का। बट ऐसा नहीं है, इसके अंदर हम कैलकुलेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं। जो भी पर्टिकुलर केस मैच करता है उसके अंदर हम लोग सिंपली कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, प्रिंट स्टेटमेंट लिख सकते हैं, पूरी प्रोग्रामिंग हो सकती है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज ब्रेक, जंपिंग स्टेटमेंट एंड इट्स रोल। ब्रेक क्या होता है, इट इज अ जंपिंग स्टेटमेंट। जंप स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, कंट्रोल को ये क्या करता है, सीधे कंट्रोल, जब जैसे ही ब्रेक एनकाउंटर होता है कंट्रोल को, वैसे ही क्या होता है, ये सीधे आपका जो कंट्रोल है वो बाहर हो जाता है उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को, जंप करा देता है। ठीक है, अनकंडीशनल जंप हो जाता है, यानी बिना किसी कंडीशन के, कोई कंडीशन नहीं चेक होता। ब्रेक मिलते ही कोई कंडीशन नहीं चेक होगा, सीधे कंट्रोल बाहर हो जाएगा। अगर स्विच केस का प्रोग्राम है तो स्विच स्टेटमेंट से बाहर, इफ एल्स है तो इफ स्टेटमेंट से बाहर, या एल्स है तो एल्स से बाहर, या फिर अगर हम लूप यूज कर रहे हैं तो लूप के बाहर हो जाता है, या अगर हम फंक्शन यूज कर रहे हैं तो फंक्शन के ब्लॉक से बाहर। यानी जो भी ब्लॉक होता है, ये जो बाउंड्री होती है इसको ब्लॉक कह सकते हैं।
इस ब्लॉक के अंदर का हमारा ब्रेक मिलता है, जैसे ब्रेक मिलता है हमारा सिंपली, तो ये ब्रेक मिलते ही ये जो कंट्रोल होता है वो बिना किसी कंडीशनर के क्या करता है, ब्लॉक से बाहर हो जाता है। अब ब्लॉक स्टेटमेंट में कई तरीके के स्टेटमेंट हो सकते हैं, आपका स्विच केस भी ब्लॉक स्टेटमेंट में आ सकता है, एक फंक्शन के अंदर जितने स्टेटमेंट होते हैं वो भी ब्लॉक हैं, और इफ एल्स से रिलेटेड है, इफ के अंदर भी ब्लॉक बनता है अगर एक से ज़्यादा स्टेटमेंट है, एल्स के अंदर भी ब्लॉक बनता है, एल्स स्टेटमेंट में भी, और फंक्शंस में है, फॉर लूप के में भी है, लूप के साथ भी ब्लॉक स्टेटमेंट बनता है। तो जो भी ये बाउंड्री होगी यानी ब्लॉक स्टेटमेंट्स होंगे, इसके अंदर जो भी स्टेटमेंट्स है वो एग्जीक्यूट होने के बाद अगर ब्रेक स्टेटमेंट एनकाउंटर होता है, वैसे ही कंट्रोल क्या होगा, ब्लॉक से बाहर आ जाएगा, यानी इस बाउंड्री से बाहर हो जाता है। तो ब्रेक क्या होता है, इट इज यूज एज अ जंपिंग स्टेटमेंट, इट मीन्स अनकंडीशनल जंपिंग के लिए यूज किया जाता है। ब्रेक स्टेटमेंट इज ऑप्शनल इन स्विच केस बट यू वुड यूज इट ऑलमोस्ट एवरी टाइम यू डील विद स्विच केस। ये ऑप्शनल है, बट ऑप्शन होते हुए भी क्या है, इसको मैक्सिमम यूज किया जाता है, क्योंकि यूज नहीं करेंगे तो उसका रीजन हमने बताया था कि यूज ना करने से फिर क्या फर्क पड़ेगा प्रोग्राम पे, कि हमारा प्रोग्राम फॉल थ्रू हो जाता है। हाँ, कभी कभी नीड होती है कि हम जो है ब्रेक स्टेटमेंट को ना यूज़ करें, क्योंकि प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जरूर ब्रेक स्टेटमेंट को कभी कभी नहीं भी यूज़ करना होता है। तो अगर ये ऑप्शन ना होता तो फिर वो भी प्रोग्रामिंग का जो आपका कॉन्सेप्ट है वो ना डेवलप हो पाता। इसलिए ब्रेक स्टेटमेंट ऑप्शन होने से भी कुछ फ़ायदे हो जाते हैं, कुछ हम लोग इसका यूज़ भी कर लेते हैं। जैसे फॉल थ्रू की प्रोग्रामिंग आपको हम बताएंगे तो वहाँ पे आपको समझ आएगा कि ब्रेक ना यूज़ करने से प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कैसे होता है। नाउ ब्रेक स्टेटमेंट आर यूज्ड when you want your program flow to come out of the switch body। अगर आपका प्रोग्राम कंट्रोल का जो प्रोग्राम फ्लो कंट्रोल है वो चाहते हैं कि आपको स्विच पर्टिकुलर केस की जो बॉडी है यानी केस से बाहर, केस को एक्सिक्यूट होने के बाद जो केस मैच कर रहा है स्विच वेरिएबल से, वो पर्टिकुलर केस ही केवल एग्जीक्यूट हो, बाकी के केसेस की जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट ना हो। तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, हमें ब्रेक यूज करना पड़ेगा। ब्रेक यूज करने से क्या है, जो केस मैच करेगा उसके जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होंगे, बाकी के जो स्टेटमेंट है और बाकी के जो केसेस हैं वो उनके स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होंगे, क्योंकि ब्रेक मिलते ही कंट्रोल हमारा एक क्या हो जाएगा, स्विच ब्लॉक से बाहर हो जाएगा। और एक बार ब्लॉक से बाहर आ गया है अगर, या स्विच स्टेटमेंट से बाहर आ गया कंट्रोल, तो वापस फिर वहां पे नहीं जाएगा आपका, ठीक। So whenever a break statement is encountered in the switch body, the execution flow would directly come out of the switch, ignoring rest of the cases। जैसे ही हमारा क्या होगा, ब्रेक स्टेटमेंट एनकाउंटर होगा प्रोग्राम कंट्रोल या कंपाइलर को, वैसे ही हमारा क्या होगा, ये जो कंट्रोल है वो क्या होगा, आउट ऑफ द स्विच आ जाएगा, एंड इट विल इग्नोर द रेस्ट ऑफ द केसेस। बाकी के जो केसेस लिखे हैं वो इग्नोर हो जाएंगे, क्योंकि हमें मल्टीपल चॉइस इसीलिए कहा जाता है कि इसको मेनू ड्राइवन प्रोग्रामिंग भी कहा जाता है। जो स्विच केस स्टेटमेंट से या स्विच स्टेटमेंट से जो प्रोग्राम बनती है उनको हम मेनू ड्राइवन प्रोग्राम भी बोलते हैं। मेनू ड्राइवन प्रोग्राम मतलब कई ऑप्शंस में से एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है, बाकी के ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पे सिंपली इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो ब्रेक की वजह से पॉसिबल होता है, मेनू ड्राइवन प्रोग्रामिंग का, या मल्टीपल चॉइस में से एक पर्टिकुलर चॉइस को सेलेक्ट करने का। Now let's see the example of break statement। ब्रेक स्टेटमेंट का क्या वर्किंग हम समझते हैं, कैसे वर्क करता है। जैसे एक हमने प्रोग्राम लिखा है यहाँ पे, पब्लिक क्लास स्विच केस एग्जाम्पल। नाउ मेन फंक्शन के अंदर हमने एक वेरिएबल या इंटीजर टाइप का आई और उसकी वैल्यू क्या है 2, ठीक। तो वेरिएबल या आई इंटीजर टाइप का और उसकी वैल्यू क्या है 2। नाउ आई को पास कर दिया स्विच वैल्यू में यानी स्विच एक्सप्रेशन के अंदर। अब आई की वैल्यू क्या है, आई इज इक्वल टू 2 है। नाउ अब आई की वैल्यू मैच कराया जाएगा हर एक केस की वैल्यू से, और केस की वैल्यू भी क्या है 1 2 इस फॉर्म में लेकर। तो हमने भी बताया था कि जो आपका स्विच एक्सप्रेशन की वैल्यू होगी वो वैल्यू केस वैल्यू के अकॉर्डिंग होना चाहिए, केस वैल्यू के कंपैटिबल होना चाहिए। अगर ये इंटीजर है तो ये भी इंटीजर होना चाहिए, अगर ये आपका कैरेक्टर है तो ये भी कैरेक्टर होना चाहिए, सिंपली, ठीक। नाउ आई की वैल्यू कंपेयर होगा हर एक केस वैल्यू से। आई की वैल्यू क्या है 2 और केस पहले वाले केस की वैल्यू क्या है 1, तो 2 नॉट इक्वल टू 1 यानी फर्स्ट वाला केस आपका क्या हो जाएगा, ये मैच नहीं किया, इसके अंदर जो स्टेटमेंट लिखा है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। नाउ केस 2, अब सेकेंड वाले केस की वैल्यू क्या है 2 है। केस वैल्यू और केस नंबर अलग अलग है। केस नंबर में मतलब एक ऑर्डर में बोल रहा हूं, केस 1 केस 2 केस 3।
अब केस वैल्यू 1 2 3 भी दिया है तो वो एक कॉन्सिडेंस है कि केस वैल्यू और केस नंबर यानी केस फर्स्ट केस सेकंड थर्ड इस तरीके से बोलो वो मैच कर रहा है, बट ऐसा नहीं है। आपका अगर केस वैल्यू अल्फ़ाबेट में है तो हम केस 1 केस ए है, केस बी केस सी इस तरीके से पढ़ा जाता है कि केस ए हम इसको पढ़ सकते हैं कि केस 1 केस 2 केस 3 ये है। बट ये केस 1 की जो वैल्यू है वो क्या है 1 2 3 और में है, वो अल्फ़ाबेट में ABC भी हो सकता था। ठीक, अब यहाँ पे आई की वैल्यू क्या है 2 है और केस सेकेंड वाले केस की वैल्यू क्या है वो भी 2 है, तो यहाँ पे 2 इज इक्वल टू 2 मैच कर दिया, यानी आई की वैल्यू हमारा सेकेंड केस से मैच कर रहा है, यानी स्विच एक्सप्रेशन या स्विच वेरिएबल की जो वैल्यू है वो किससे मैच कर रहा है केस 2 से। केस 2 से जब मैच कर रहा है तो फिर केस 2 के अंदर जो स्टेटमेंट लिखा है एक प्रिंट स्टेटमेंट है और क्या प्रिंट कर देगा केस 2, उसके बाद ब्रेक मिल जाएगा। जैसे ही केस 2 ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा वैसे ही उसको मिलेगा ब्रेक, और जैसे ही ब्रेक मिलेगा कंट्रोल हमारा क्या हो जाएगा स्विच स्टेटमेंट के बाहर आ जाएगा, और बाहर आने के बाद कहाँ आएगा, यहाँ तक तो हमारा स्विच का ब्लॉक है, यहाँ तक ये हमारा मेन फंक्शन का ब्लॉक है और ये हमारा क्लास का ब्लॉक है, तो यहाँ पे आ जाएगा, कहाँ पे आएगा ये कंट्रोल इस जगह पे। इसके बाद अगर कोई स्टेटमेंट लिखा है तो वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा एक आपका सिक्वेंशियल ऑर्डर में। ठीक, क्या होगा बाकी के जो केस 3 है, अब आपका केस 2 से जब मैच किया आई की वैल्यू तो केस 3 इग्नोर हो जाएगा। ठीक, और डिफॉल्ट भी इग्नोर होगा क्योंकि डिफॉल्ट तभी एग्जीक्यूट होता है जब पर्टिकुलर कोई भी केस मैच नहीं करता, तो बाकी के ये दोनों केसेस क्या होंगे इग्नोर होंगे। इवन कंपेयर भी नहीं होगा, क्योंकि कंपेयर होने के लिए यहां तक कंट्रोल को आना पड़ेगा, और कंट्रोल जैसे ही ब्रेक स्टेटमेंट मिलता है वैसे ही कंट्रोल बाहर हो जाएगा स्विच के, तो कंट्रोल यहां तक आएगा ही नहीं, तो कंपेयर होने की बात ही नहीं कर सकते। पहले वाले का कंपेयर होना है क्योंकि पहले वाले केस से एक ऑर्डर में है, सबसे पहले लिखा गया। अगर भाई हम केस 2 को सबसे पहले लिख दिए होते तो सबसे पहले ही मैच कर जाता, तो केस 1 भी हमारा क्या होता कंपेयर नहीं होता स्विच के वेरिएबल की वैल्यू से। तो ये भी है कि केस में हम ऑर्डर अलग अलग लिख सकते हैं, केस 1 केस 2 केस 3 को हम जिस ऑर्डर में लिखेंगे, लेकिन हमारा कंट्रोल क्या होता है स्विच स्टेटमेंट के अंदर भी एक सीक्वेंस में ही क्या करता है ट्रैवल करता है या फ्लो करता है। तो पहले अगर हम केस 2 लिखे होते तो पहला वाला ही केस यहाँ पे मैच कर जाता आई की वैल्यू से। ठीक है, आई की वैल्यू से पहला ही मैच कर जाता जब केस 2, बाकी के जो केस 1 केस 2 केस 3 केस 4 था डिफॉल्ट था वो सब भी एग्जीक्यूट नहीं होते, क्योंकि केस मिलने के बाद ब्रेक मिल जाता और ब्रेक के बाद वो क्या होता कंट्रोल हमारे स्विच स्टेटमेंट से बाहर हो जाता। ठीक, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अभी इस पे हम लोग काफ़ी प्रोग्राम भी करेंगे तो बहुत इजीली समझ में आने लगेगा, और इसका स्ट्रक्चर इजी भी होता है और इंटरेस्टिंग प्रोग्राम भी बनते हैं इससे। नाउ तो मैंने बताया कि अगर केस को हम ऑर्डर चेंज कर देते, पहले हम केस 2 लिख देते। ठीक, तो सपोज अगर हमने ऐसे ऑर्डर में लिखा है केस 2 केस 5 केस 1, अब जब हमारा जो स्विच का है वो वेरिएबल की वैल्यू वो सबसे पहले जो केस लिखा है उसकी वैल्यू से मैच करेगा। उससे मतलब नहीं कि केस 1 को सर्च नहीं करेगा डायरेक्ट जाके, वो कंपेयर करेगा एक ऑर्डर में, इससे कंपेयर करेगा फिर इससे करेगा फिर इससे करेगा। सपोज वो जाके केस 1 से मैच कर रहा है, यहाँ से मैच कर रहा है, तब जाके इसके स्टेटमेंट एक्सिक्यूट होंगे और इसके अंदर ब्रेक है, तो ये बाहर कर देगा। इसके बाद के जो केसेस हैं, सपोज यहाँ पे आपका अगर इसके बाद सपोज केस होता सपोज केस 1 के बाद केस हमने ले लिया होता 4, तो केस 1 के मैच हो गया, केस 1 मैच होने के बाद इसके स्टेटमेंट एक्सिक्यूट होंगे और ब्रेक होगा। फिर उसके बाद अब केस 4 5 या जो भी आगे लिखा है या डिफॉल्ट लिखा है वो केसेस क्या होंगे कंपेयर नहीं होंगे, क्योंकि फिर ये ब्रेक मिलने के बाद कंट्रोल बाहर हो जाएगा। लेकिन अगर जब तक केस नहीं मैच कर रहा है उसके पहले जितने केसेस आपके लिखे गए हैं सबकी वैल्यू से जो है स्विच के वेरिएबल की वैल्यू का कंपैरिजन होगा। क्लियर? ओके, नाउ हम एक स्टैंडर्ड प्रोग्राम देखते हैं स्विच केस स्टेटमेंट पे, मेकिंग कैलकुलेटर यूजिंग द स्विच केस स्टेटमेंट। ओके,
there is a program on screen making calculator using the switch statement. switch statement की वजह से कैलकुलेटर का प्रोग्राम बनाना। अभी तक मैंने आपको जितने भी प्रोग्राम बताए, स्विच केस से रिलेटेड एग्जांपल्स जितने भी मैंने आपको दिया, उस सभी में मैंने क्या किया था कि केवल केस के अंदर सिंपल प्रिंट स्टेटमेंट लिखा गया था और ब्रेक लिखा गया था। केवल प्रिंट कराना था और ब्रेक करना, वो मुझे केवल आपको वर्किंग समझाना था, स्विच केस स्टेटमेंट का वर्किंग क्या होता है। नाउ अब एक स्टैंडर्ड प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें कैलकुलेशन भी होगा। तो यहाँ पे स्कैनर क्लास का भी मैंने यूज़ किया। इस प्रोग्राम में मैंने इनपुट भी लिया है यूजर से, क्योंकि अभी तक जितने प्रोग्राम थे उसमें मैंने वेरिएबल डिक्लेयर करके उसकी एक वैल्यू ले लेता था। तो आपको लग रहा है कि हर बार वैल्यू ही लिया जा रहा है, क्या इसमें इनपुट नहीं किया जा सकता क्या? तो इनपुट स्टेटमेंट के साथ इसलिए हमने ये वाला प्रोग्राम लिया है। तो यहाँ पे एक कैरेक्टर टाइप का एक वेरिएबल लिया है ऑपरेटर, जिसका टाइप क्या है? कैरेक्टर। फिर 3 वेरिएबल्स दिए हैं, रिजल्ट, नंबर 2, नंबर 1। नंबर 2, नंबर 1 इसको हम कह सकते हैं num1 num2 ले लीजिए, नंबर ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, num1 num2, ठीक। डबल टाइप का वेरिएबल num1 num2 एंड रिजल्ट। और फिर स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया, SC ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, ठीक है। ये क्या है? ऑब्जेक्ट ऑफ स्कैनर क्लास। आपने स्कैनर क्लास को पढ़ा होगा, ऑब्जेक्ट ऑफ स्कैनर क्लास, ठीक, क्रिएट कर लिया। क्यों क्रिएट किया? क्योंकि हमें इनपुट लेना है यूजर से। तो कितने वेरिएबल्स मैंने डिक्लेयर किया? 4 वेरिएबल्स, 1 वेरिएबल ऑपरेटर ऑफ कैरेक्टर टाइप, और बाकी के 3 वेरिएबल डबल टाइप का है, जिसमें रिजल्ट है, num1 है, num2 है, ठीक। अब इसको कंटिन्यू करते हैं प्रोग्राम को। यहाँ पे एक प्रिंट स्टेटमेंट आएगा, इंटर ऑपरेटर। ऑपरेटर एंटर करिए। यूजर से क्या होगा? ऑपरेटर इनपुट किया जाएगा। यानी आपको क्या इनपुट करना है ऑपरेटर में? या तो प्लस करना है, माइनस करना है, या मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन सिंबल। जो भी ऑपरेटर आपको इनपुट करना है वो दिया हुआ है कि क्या ऑपरेटर इनपुट करना है। आस्क यूजर टू एंटर ऑपरेटर। अब यूजर क्या करेगा? ऑपरेटर इनपुट करेगा। ऑपरेटर को मैंने एज अ कैरेक्टर स्टोर कराया है, ठीक है। तो कैरेक्टर एज अ कैरेक्टर स्टोर कराया, तो उसको स्टोर करने के लिए हम लोग नेक्स्ट फंक्शन यूज करते हैं, नेक्स्ट डॉट कैरेट 0। ये फंक्शन आपको मैंने पढ़ाया है जब हमने स्कैनर क्लास पढ़ाया था आपको। तो उसके हेल्प से हम लोग क्या करेंगे? कैरेक्टर को रिसीव करके और स्टोर करा देंगे ऑपरेटर वेरिएबल में, ठीक। ऑपरेटर वेरिएबल में स्टोर कर दिया। नाउ एंटर नंबर 1 एंड नंबर 2, दोनों नंबर इनपुट रिस्पेक्टिवली। दोनों नंबर इनपुट करने के लिए पूछा है कि 2 नंबर इनपुट करिए, नंबर 1 और नंबर 2। अब आपने जो फर्स्ट नंबर इनपुट किया वो num1 वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा, और सेकंड वैल्यू जो इनपुट करेंगे वो आपका num2 में स्टोर होगा। और दोनों डबल टाइप का या नेक्स्ट डॉट डबल फंक्शन यूज किया, क्योंकि हमने जो num1 num2 और रिजल्ट वेरिएबल लिया था वो क्या लिया था? डबल टाइप का लिया था, ठीक। तो यहाँ अभी तक क्या हुआ? हम लोगों ने वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया, और वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद यूजर से ऑपरेटर इनपुट करा लिया, ऑपरेटर टाइप, और 2 नंबर इनपुट करा लिए, एक num1 में स्टोर करा लिया और एक num2 में, ठीक। नेक्स्ट फिर अब यहां से स्टार्ट होता है स्विच स्टेटमेंट एक्चुअली। अब स्विच के अंदर हमने क्या रखा है? वेरिएबल क्या दिया है? ऑपरेटर। यानी ऑपरेटर में क्या होगा? या तो प्लस होगा, माइनस, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, जो यूजर ने इनपुट किया होगा। जो भी यूजर ने ऑपरेटर इनपुट किया था उसको हमने ऑपरेटर वेरिएबल में स्टोर करा दिया था। अब ये क्या होगा? यहाँ पे ऑपरेटर की जो वैल्यू होगी, यानी ये प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये जाके केस की वैल्यू से मैच कराया, कंपेयर होगा। और केस की वैल्यू में भी हमने इस बार क्या लिया है? अभी तक हमने आपको बताया था केस की वैल्यू में हम लोग 1 2 लिखते थे, या केस की वैल्यू में हम इस तरीके से लिखते थे, ए बी, इस तरीके से लिखते थे, ठीक है। केस 1 अगर हमारा कैरेक्टर है तो उसको सिंगल कोटेशन मार्क में, केस वैल्यू हमारा अगर कैरेक्टर टाइप का हो तो उसको सिंगल कोट में लिखेंगे। न्यूमेरिकल यानी नंबर वैल्यू, इंटीजर वैल्यू को हम जो है बिना डबल कोटेशन के लिखते हैं। सिमिलरली हमने जो ऑपरेटर इनपुट कराया था वो भी एज अ कैरेक्टर इनपुट लिया था, ठीक। तो सिमिलरली जो हमने ऑपरेटर इनपुट कराया था वो भी एज अ कैरेक्टर इनपुट कराया था। अब यहाँ पे ऑपरेटर में सपोज यूजर ने इनपुट कर दिया मल्टीप्लिकेशन। जब यूजर से इनपुट मांगा गया तो सपोज जो इनपुट रहा वो क्या है? मल्टीप्लिकेशन है। तो इनपुट को हम ले लेते हैं, सपोज हमने ले लिया मल्टीप्लिकेशन से। अब यहाँ पे केस, फर्स्ट केस क्या है? प्लस। अब इससे मैच होगा ऑपरेटर की वैल्यू, ये मैच नहीं करेगा। मैच नहीं करेगा तो बाकी के स्टेटमेंट हमारा क्या है? एग्जीक्यूट नहीं होंगे। हाँ, अगर एग्जीक्यूट होते तो क्या होता? अगर इस केस से मैच करेगा तो इसके अंदर रिजल्ट वेरिएबल में हम लोग क्या स्टोर कराएंगे? num1 प्लस num2, क्योंकि ये प्लस ऑपरेटर है। तो प्रोग्राम में एक्चुअली है क्या? इस पे ऑपरेटर मांगा जा रहा है यूजर से,
और दो वैल्यू ले जा रही है। दोनों वैल्यू के ऊपर क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो ऑपरेटर जो यूजर इनपुट करेगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो ऑपरेटर जो भी चूज करेगा यूजर, उसकी चॉइस के अकॉर्डिंग वो पर्टिकुलर केस मैच करेगा और उस केस के अंदर जो भी ऑपरेटर है उस ऑपरेटर के अकॉर्डिंग ऑपरेशन होगा। तो अगर यूजर ने प्लस ऑपरेटर को सिलेक्ट चॉइस में दिया या प्लस ऑपरेटर इनपुट किया तो केस प्लस वाला मैच करेगा और फिर उन दोनों नंबर जो इनपुट करें उनके बीच में क्या परफॉर्म होगा, एडिशन ऑपरेशन होगा और वो जाके रिजल्ट वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। और रिजल्ट वेरिएबल में स्टोर होने के बाद फिर यहाँ पे num1 num2 की वैल्यू के साथ रिजल्ट प्रिंट हो जाएगा। ठीक, उसके बाद फिर ब्रेक स्टेटमेंट लगाए। बाकी के जो हमारे केसेस हैं माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का और डिफॉल्ट का, वो एग्जीक्यूट नहीं होगा कि एट अ टाइम यूजर एक ही ऑपरेटर इनपुट करेगा और जो ऑपरेटर इनपुट होगा उसके अकॉर्डिंग ऑपरेशन होगा। अगर प्लस इनपुट किया है तो एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म होगा जो भी नंबर इनपुट किया गया उनके ऊपर। ठीक, अब आपका सेकेंड केस से मैच होगा। सेकेंड केस से मैच होने के बाद हम यहाँ पे क्या दिया, केस सेकेंड क्या है, माइनस, इससे मैच होगा। अब हमने इनपुट, यूजर ने क्या किया था, यूजर ने इनपुट किया था एस्टेरिक सिंबल, हमने मान सपोज कर लिया था। अब यहाँ पे केस ये भी मैच नहीं करेगा। अगर ये केस मैच करता तो क्या होता, अब यहाँ पे उन दोनों नंबर के बीच में ऑपरेशन चेंज हो जाता। अब ऑपरेशन क्या होता है नंबर के बीच में, num1 माइनस num2। ठीक, अब यहाँ पे एक चीज और हम लोग कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि num1 num2 की वैल्यू में num1 बड़ा ही हो सकता है कि यूजर ने num1 को जो है छोटा और num2 को बड़ा वैल्यू इनपुट किया हो। तो यहाँ पे हम इफ स्टेटमेंट भी लगा सकते थे, इफ num1 इज ग्रेटर देन num2, देन फिर क्या करना है, रिजल्ट में स्टोर करना है, रिजल्ट इज इक्वल टू num1 माइनस num2। ठीक, यहां पे इफ एल्स लगा सकते थे। एल्स में क्या कर सकते हैं, एल्स, फिर यहां पे अगर एल्स कंडीशन आ गई और एल्स में रिजल्ट इज इक्वल टू num2 माइनस num1, ये करते तो आपका प्रोग्राम और अच्छा बन जाएगा इसमें, क्योंकि ये हम अजम्पशन है कि num1 को हमने छोटा बड़ा इनपुट किया है, num2 को छोटा, इसलिए num1 माइनस num2। इसमें थोड़ा सा ये चेंजेस किया जा सकता है। तो आप चाहें तो इस प्रोग्राम में थोड़ा सा जब आप इसको प्रोग्राम करें, टाइप करने लगे, तो ये चेंजेस करके आप देखेगा तो आपको रिजल्ट उस हिसाब से मिलेगा। ये फिर आपको ये ध्यान नहीं देना होगा कि num1 को बड़ा इनपुट करना वैल्यू और num2 को छोटा, देन आपका num1 माइनस num2 और इसका रिजल्ट यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। ठीक, बट चूंकि केस हमारा क्या है, वो मैच नहीं कर रहा है माइनस वाले से, नेक्स्ट पे आएगा यहाँ पे। अब हमने इनपुट क्या कराया था, एज अ यूजर मैंने सपोज किया था कि इनपुट हुआ है मल्टीप्लिकेशन से एस्टेरिक सिंबल, तो केस थर्ड यानी जो एस्टेरिक सिंबल वाला वैल्यू है उससे मैच कर जाएगा, यानी कि मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर से। और इससे जैसे ही मैच करेगा वैसे ही क्या होगा, num1 और num2 के बीच में क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा और इसका जो प्रोडक्ट है वो जाके स्टोर हो जाएगा रिजल्ट वेरिएबल में और यहाँ पे रिजल्ट वेरिएबल प्रिंट होगा। और फिर इस प्रोग्राम का जो हमें आउटपुट मिलेगा, आउटपुट क्या आएगा, num1, सपोज num1 हमने इनपुट किया था, सपोज मैं यूजर ने इनपुट किया num1 की वैल्यू 3 और num2 की वैल्यू सपोज इनपुट किया था 1। ठीक, तो यहाँ पे 3 इंटू 1, तो यहाँ पे 3 इंटू 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा num1 इंटू num2 यानी 1, फिर इक्वल साइन को एज अ मैसेज प्रिंट करेंगे, फिर रिजल्ट जो आएगा 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 3। इस तरीके से आपका आउटपुट मिल जाएगा। 3 इंटू 1, 3 एज अ मैसेज num1 की वैल्यू, देन एस्टेरिक सिंबल एज अ मैसेज प्रिंट हो जाएगा, देन num2 की वैल्यू प्रिंट होगा 1, देन फिर जो है आपका एज अ मैसेज प्रिंट हो जाएगा इक्वल साइन, देन आपका रिजल्ट जो है वो वेरिएबल उसकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। ठीक, उसके बाद के जो केसेस हैं आपका, उसके बाद हमने केस किया है डिवीजन का। अगर सपोज यूजर इनपुट करता जो ऑपरेटर वो डिवीजन होता, तो उस केस में फिर ये आपका जो केस वाला फोर्थ वाला केस है डिवीजन का, वो मैच करता, देन num1 और num2 के बीच में डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म होता। ठीक, यहाँ भी हम इफ एल्स लगा सकते हैं, इफ num1 इज ग्रेटर देन num2, देन आपका num1 डिवाइड बाय num2, ये आपका रिजल्ट में स्टोर होता है। अदरवाइज अगर आपका एल्स में चले जाए हम लोग और एल्स रिजल्ट इज इक्वल टू num2 डिवाइडेड बाय num1। ठीक, यहाँ पे भी हम कंडीशन लगा के तब उसको प्रोग्राम को थोड़ा और स्टैंडर्ड बना सकते हैं। और फाइनली हमारे पास डिफॉल्ट केस है।
और डिफ़ॉल्ट केस में क्या होगा, जब कोई भी ऑपरेटर जो इनपुट किया है उसमें से कोई भी ऑपरेटर जो है सपोज अदर देन प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑपरेटर के अलावा अगर कोई और ऑपरेटर इनपुट कर दिया, सपोज यूजर ने कर दिया मॉडुलस ऑपरेटर, ये एक्सपोनेंट ऑपरेटर है इस तरीके से, तो उस केस में क्या होगा, हमने अभी ऑपरेटर में 4 ही केसेस दिए हैं 4 बेसिक ऑपरेशन के लिए, केवल एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के लिए, ठीक है। तो ये 4 बेसिक ऑपरेशन ही कैलकुलेटर में जनरली होते हैं, तो ये 4 बेसिक ऑपरेशन हमने लिया। उसके बाद अगर कोई नहीं मैच कर रहा तो ये क्या करेगा, इनवैलिड ऑपरेटर लिख देगा। क्या लिखेगा, इनवैलिड ऑपरेटर, यानी जो ऑपरेटर बेसिक हमने मान के रखा है या पहले ही मैसेज में दे रखा है यूजर्स को कि इनपुट एनी ऑपरेटर क्या क्या करना है, उसमें दे भी रखा है कि इधर प्लस माइनस और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ठीक है। और उसके अलावा कुछ भी अगर आप इनपुट करते हैं तो किसी भी केस से मैच नहीं करेगा, क्योंकि जिस तरीके का ऑपरेटर यूजर से इनपुट करने के लिए कहा गया उसी तरीके से हमने केस भी बनाया हुआ है। अगर उनके अलावा कोई ऑपरेटर इनपुट करते हैं, क्योंकि देयर आर सो मेनी ऑपरेटर्स, तो बाकी के किसी ऑपरेटर के लिए क्या लिख के आएगा, इनवैलिड ऑपरेटर, एंड देन फिर आपका ब्रेक हो जाएगा। यहाँ स्टेटमेंट, यहाँ ब्रेक ऑप्शनल है, जरूरी नहीं है कि इसको हम यूज करें, ये ऑप्शनल है, यहाँ न भी लगाएं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये आपका क्या होता है, अगर यहाँ ब्रेक नहीं भी लगाते तो ब्रेक इस डिफॉल्ट स्टेटमेंट के बाद इस कोई भी स्टेटमेंट नहीं है स्विच स्टेटमेंट के अंदर जिसको क्या हो एग्जीक्यूट करना है, तो ऑटोमेटिकली आपका कंपाइलर जो है वो क्या होता है, स्विच से बाहर आ जाएगा, क्योंकि डिफॉल्ट इज द लास्ट केस रिटन इन दिस प्रोग्राम, सबसे लास्ट केस लिखा गया डिफॉल्ट केस। अगर ये ऑर्डर में ऊपर कहीं लिखा होता तब जरूरी हो जाता कि हम ब्रेक लगा देते हैं। ओके, सो दिस इज द प्रोग्राम टू डिमॉन्स्ट्रेट और टू प्रोग्राम टू मेक अ कैलकुलेटर यूजिंग स्विच कीज। ये कंप्लीट प्रोग्राम है जो आपको समझ में आया होगा। इसको एक बार आप फिर से देख लीजिए पूरा प्रोग्राम। सिंपली यहाँ पे थोड़ा सा लेंदी प्रोग्राम है, कई स्लाइड्स में है। दो वैल्यू इनपुट कराएंगे, नंबर 1 नंबर 2, और ऑपरेटर इनपुट कराएंगे यूजर से। यूजर अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन जो भी ऑपरेटर है वो ऑपरेटर इनपुट करेगा। उस ऑपरेटर के अकॉर्डिंग जो है क्या होगा, पर्टिकुलर केस मैच करेगा, और जिस भी केस ऑपरेटर के केस से मैच कर जाएगा वो पर्टिकुलर ऑपरेशन आपका उन दोनों नंबर के ऊपर परफॉर्म होगा, और उसका जो रिजल्ट आएगा वो एक रिजल्ट वेरिएबल में स्टोर करा लेंगे और रिजल्ट को प्रिंट कराएंगे, और फिर उस पर्टिकुलर केस से बाहर आने के लिए हम ब्रेक स्टेटमेंट हमने लगा दिया। तो यहाँ पे बेसिक 4 ऑपरेटर्स हमने मान के लिए रखा है कि यूजर से 4 ऑपरेटर ही बोला गया है इनपुट करने के लिए, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, और इनके अलावा अगर कोई ऑपरेटर यूजर इनपुट करता है तो फिर वो उस केस में हमने डिफॉल्ट केस में क्या रखा है, सिंपल एक मैसेज प्रिंट करा रखा है कि इनवैलिड ऑपरेटर। So this is how we can implement switch case calculator program using switch case statement. तो या इसको कह सकते हैं कि हम switch case statement का एक एप्लीकेशन भी है कि कैसे कैलकुलेटर का हम लोग प्रोग्राम बना सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट switch case statement, एंड आज की क्लास में हमने आपको बताया कि switch case statement क्या होता है, और उस पर switch case statement के एग्जाम्पल्स बताए, और उस कैसे वर्क करता है switch case statement, और switch case statement को लिखने के लिए क्या रूल होता है, कैसे हम लिखेंगे उसको, क्या क्या ध्यान देना है हमें। देन हमने आपको डिफ़ॉल्ट और ब्रेक 2 कीवर्ड जो यूज़ होते हैं आपके स्विच के स्टेटमेंट में, उन कीवर्ड्स के बारे में बताया, या उन दोनों स्टेटमेंट के बारे में बताया आपको, और उससे रिलेटेड फिर हमने आपको प्रोग्राम, और लास्ट में एक कैलकुलेटर का प्रोग्राम आपको बताया गया। इसके बाद अभी इस स्विच केस में हम लोग इफ एल्स और स्विच केस के बीच में कंपैरिजन और नेस्टेड स्विच, फॉल थ्रू प्रोग्राम और कुछ और टॉपिक्स हैं। इसके बाद फिर हम इसमें आपके बाकी के जो प्रोग्राम्स हैं उस पर डिस्कस करेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज क्लास। थैंक यू।